Hello everyone, welcome to Insights IAS Analytica, where we will be discussing previous year UPSC questions. So what we will be doing is we'll take up one question per video and we'll discuss and brainstorm on that particular questions. So it will help you generate fodder points and we'll provide you with a sample answer for freshers. Okay, so a very good thing about UPSC CSE is that you don't have to be expert in one particular topic to write a good answer. You just need to understand the process of answer writing. So I'll walk you through that. So process of answer writing में क्या होता है कि you need to understand the demand of the question, that is keywords and directives you underline before itself, and then you have to make a mental map of what you are going to write in that particular answer. Everyone knows that answer contains introduction, body and conclusion. Now generating points in body is difficult, so we'll create the subheading from the question itself that we'll see in this particular question. Then write your answer within a given time frame, that is 10 marker within 7 minutes and 15 marker within 8 to 9 minutes. Now this has been very important that you need to have a very good presentation, that is have a proper structure and legible handwriting, because if one is not able to read what you have written, then it is no use of having a good content. Okay, now if you continue this process for each and every answer that you practice, you will be able to complete your paper within given time frame, that is 3 hours mein you will complete all the 20 questions. Now we will see one of the question that was asked in UPSC CSE this year, and it was taken from this particular topic, changes in critical geographical features. Now this particular topic has been important because UPSC has been asking question from this, and if you analyze past 5-year questions, you will see that they have asked in GS1 and GS3 both papers. So let's see why this question. Now whenever you go through current affairs, you need to identify from where prelims question can be asked and from where mains question can be asked. ठीक है, तो अगर if anyone had read current affairs of last year, you would know that IPCC has released assessment report 6. अब assessment report 6 में clearly mention किया था that melting of polar ice and glaciers would and its consequences के बारे में. That's why this question was asked. If anyone had not read about IPCC report, they would know that India had released a draft Arctic policy January में. Now if you don't know about this also, before starting mains answer writing, you need to analyze previous year question papers. ठीक है, at least 5 years का you should do. So it was thrice asked by UPSC in geography itself. India is taking keen interest in resources of Arctic region, then how cryosphere is affecting global climate, what are the economic significance of discovery of oil in Arctic region. So you can see that this particular topic is very important. ठीक है, now what we'll do is we'll discuss the question that was asked this year, that is how do the melting of Arctic ice and glaciers of Antarctic differently affect the weather pattern and human activities. इसमें directive था explain. So as I mentioned in the process of answer writing, that the keywords here are, you have to underline the keywords before itself, that is melting of Arctic ice, glaciers of Antarctic, differently is very important keyword here, then weather patterns and human activities, इसको पहले ही underline कर दो. Now the directive here is explain. There are various types of directives and you need to understand the meaning of each and every directive, that is explain, critically evaluate, discuss. ठीक है, don't worry about it, we'll go through them if whenever they come in questions future में. ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टिव था एक्सप्लेन. अब whenever in geography question explain has been asked, you need to give detailed account of how and why it occurs. जैसे कि melting of Arctic ice and glaciers, how they will differently affect weather patterns and human activities. You have to explain the process कि weather pattern में कैसे impact हो रहा है. Okay, now let's start with introduction. In this particular question, as I mentioned before that it was taken from IPCC report. Let's imagine that it was taken from IPCC report. So you can write about introduction taking IPCC report and what they had said. अब introduction बहुत सारे टाइप के होते हैं. Let's go through them. पहला है definition based, then there can be current affairs based, factual based, analytical based, quotes based. ठीक है, definition based where you will use जब एक term पूछा है which is very unique, जैसे 2016 में पूछा था allelopathy, then you have to define what it means. For current affairs based, जब तुमको कोई current affairs में particularly आया, then you can mention that. Factual based कब statistics देना है, data देना है, usually society के question में this happens. So as I mentioned is in this question you can write about current affairs based. तो कैसा introduction you would have written कि IPCC has mentioned that in the last 150 years Arctic ice is at its lowest and Antarctic glaciers are melting at unprecedented rate and how they are impacting human activities and weather patterns that clearly mentioned. You could have given this particular current affairs based introduction itself. Now if you are not aware of
IPCC AR6 report, you could have written a generalistic introduction like importance of Arctic ice and Antarctic glacier, and how they are helping in regulating thermohaline regulation of the ocean. You could have mentioned about those type of introduction also. Okay. Now let's go with body. Body में as I mentioned that subheading हमको बनाना पड़ेगा from question itself, that is impact of Arctic ice melting and Antarctic glacier melting on human activities and weather patterns. तो पहला subheading you take कि impact on human activities या फिर impact on weather patterns, anything you can take. तो यहाँ पे हम weather patterns ले लेते हैं, ठीक है. तो weather patterns when we take, so simple है. एंटार्क्टिक ग्लेशियर मेल्ट हुआ, व्हाट विल हैपन, इट विल लीड टू ग्लोबल सी लेवल राइज. लाइक तुमने बेस ज्योग्राफी भी पढ़ा नहीं है, लॉजिकली भी वी नो एवरी टाइम इट कम्स इन न्यूज़ की ग्लोबल सी लेवल राइज बढ़ गया. बट इसका वेदर पैटर्न में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट. तो उसमें क्या होगा, द मोमेंट एंटार्क्टिक ग्लेशियर मेल्ट्स इट इज एडिंग फ्रेश वाटर इनटू द सलाइन ओशन. द मोमेंट फ्रेश वाटर एंटर्स, मिक्सिंग स्लो हो जाता है, लाइक वर्टिकल मिक्सिंग fresh water and saline water. Now when fresh water is in there will be stratification. Stratification होगा तो क्या होगा, the sea level, the sea temperature rises which will lead to disasters like cyclones, thunderstorms, because we know cyclone के लिए सबसे important है rise in sea level temperature. So like that cyclones और वो सब बढ़ जाएंगे. Now another important thing is permafrost melting. अब permafrost होता क्या है, I'll explain that. Permafrost is any ground that has been in frozen state consecutively for the past 2 years. ठीक है, ये permafrost होता है. अब Arctic ice melt होगा, साथ में permafrost भी melt होगा. Okay, now what will happen is when permafrost melt, it has tons of millions of methane gas trapped there in permafrost. So methane gas जो trapped है, it starts get emitting. जैसे ही methane emission होगा, we know methane is a greenhouse gas. Greenhouse gas है, it will lead to global warming. कार्बन साइकिल इम्पैक्ट किया, ग्लोबल लाइक ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ गया, दैट इज हाउ इट इज इम्पैक्टिंग वेदर पैटर्न. ठीक है, तो परमाफ्रोस्ट मेल्टिंग दूसरा हो गया. अब लेट्स गो विद बेसिक ज्योग्राफी में क्या क्या होता है. एक कॉन्सेप्ट है पोलर वोर्टेक्स का. पोलर वोर्टेक्स एक्चुअली होता है क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे, इट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर जो दोनों पोल्स में है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बोथ. वो कोल्ड एयर को कॉन्सेंट्रेट करके रखता है. एंड इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ट्रॉपिक्स में देर इज वार्म एयर. तो जब यहाँ पे कोल्ड एयर हो गया, यहाँ पे वार्म एयर हो गया, तो ये जो जेट स्ट्रीम्स होता है ना, व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स? जेट स्ट्रीम्स आर नैरो बैंड्स ऑफ फास्ट मूविंग एयर करंट्स इन द अपर एटमॉस्फियर. ओके, दोज आर जेट स्ट्रीम. ये स्टेबल जेट स्ट्रीम है. जब स्टेबल पोलर वोर्टेक्स है, दैट इज आइस अभी मेल्ट नहीं हुआ है, तब पोलर वोर्टेक्स स्टेबल है. एंड जेट स्ट्रीम भी प्रॉपर है, दैट इज डिफ्रेंशिएट कर रखा है कि यहाँ पे ठंडी है, यहाँ पे गर्मी है, ऐसा. अब जैसे ही आर्टिक आइस मेल्ट हो रहा है, तो पोलर वोर्टेक्स अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जो डिफरेंस था ट्रॉपिक और पोलर के बीच में वो कम हो रहा है. एज यू कैन सी द टेम्परेचर डिफरेंस इटसेल्फ विल बी रिड्यूस्ड. तो उसके कारण क्या होगा, कोल्ड एयर विल डिसेंड साउथ. ओके, द मोमेंट कोल्ड एयर डिसेंड साउथ, दिस विल वॉबल द जेट स्ट्रीम. पोलर जेट स्ट्रीम में वो वीक हो जाएगा एंड ऐसे वॉबली शेप हो जाएगा, बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे पैचेस ऑफ कोल्ड वेव्स हो जाएंगे एंड ट्रॉपिक्स में से हीट वेव्स विल मूव अप. एंड जहाँ पे नॉर्मली ठंडी होता है, देयर विल बी हीट वेव्स देयर. ठीक है, तो पैचेस ऑफ हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स हो जाएंगे. दैट इज हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द वेदर पैटर्न देयर. अब ये पोलर जेट स्ट्रीम है, जब ये साउथ में होता है लाइक सदर्न हेमिस्फीयर में, और वहाँ पे वीक हो जाता है, देन इट इज अफेक्टिंग द सदर्न स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग करा देता है सदर्न एरिया में. एंड इसके कारण ऑस्ट्रेलियन रीजन में डेसिकेशन इफेक्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच वाइल्ड फायर्स आर इंक्रीजिंग. लाइक इफ समवन हैज बीन फॉलोइंग पास्ट 2-3 ईयर करंट अफेयर्स, तो पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर्स आर इंक्रीजिंग. द रीजन इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली. तीसरा दूसरा एक फीचर है एम्प्लीफिकेशन ऑफ टेम्परेचर. ये बेसिक है. एम्प्लीफिकेशन ऑफ टेम्परेचर कैसे होगा, आर्टिक आइस मेल्ट हो रहा है, ठीक है. अब एवरीवन नोज कि ग्लेशियर्स और स्नो है, दे हैव हाईएस्ट एल्बिडो. एल्बिडो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पावर, सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर लेता है, लाइक दे डोंट एब्जॉर्ब इट. तो जैसे ही आर्टिक आइस मेल्ट हो गया, एल्बिडो वीक हो गया, दैट मीन्स इट इज एब्जॉर्बिंग सनलाइट. मतलब और आइस मेल्ट हो रहा है, फीडबैक लुक बना, लाइक मेल्ट हो रहा है, ऊपर से और मेल्ट हो रहा है, दे आर नॉट रिफ्लेक्टिंग बैक, लाइक दैट एम्प्लीफिकेशन ऑफ टेम्परेचर हो. इसको आर्टिक एम्प्लीफिकेशन भी नाम दिया IPCC ने. नाउ अनदर कॉन्सेप्ट इज AMOC. AMOC होता क्या है, अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन. अभी अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन इज पार्ट ऑफ ग्रेट ओशन कन्वेयर बेल्ट. ग्रेट ओशन कन्वेयर बेल्ट करता क्या है, इट रेगुलेट्स
थर्मोहलाइन सर्कुलेशन ओशन में टेम्परेचर और सैलिनिटी को रेगुलेट करता है पोलर्स के बीच में, पोलर्स और ट्रॉपिक के बीच में। तो वार्म जो होगा वो पोलर में जाएगा, वहाँ से कोल्ड है वो डिसेंट साउथ होगा, एंड दैट इज हाउ आवर ओशन करंट्स आर लाइक मेंटेन करता है, एंड दिस हैज़ इम्पैक्ट ऑन वेदर पैटर्न्स सराउंडिंग द करंट ऑल्सो। अभी यहाँ पे ये है अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। यहाँ पे व्हेन आर्टिक आइस मेल्ट हो गया तो द टेम्परेचर डिफरेंस इज रेड्यूस्ड नाउ, पहले ज़्यादा था, इट हैज़ बिन रेड्यूस नाउ। तो यहाँ पे अटलांटिक मेरिडोनियल का एक पार्ट है विच इज़ नोन एज गल्फ स्ट्रीम। इफ एनीवन हैज़ रेड अबाउट लाइक ओशन करंट्स दे नो दैट गल्फ स्ट्रीम इज एक्चुअली अ वार्म करंट। ठीक है, वार्म करंट है। तो व्हाट हैपेंस इज ये नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका में वार्मिंग इफेक्ट देता है, यूजुअली कोल्ड होता है लेकिन वार्मिंग इफेक्ट देता है। नाउ व्हेन एएमओसी वीकेंड्स तो ये जो वार्मिंग इफेक्ट देना था वो नहीं देता है, तो उसके कारण क्या होता है नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका में कोल्ड वेव्स आ जाते हैं। दैट इज हाउ इट इज इम्पैक्टिंग वेदर पैटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। ये एग्जाम्पल था, मैंने कैसे सब्सटैंशिएट किया कि एएमओसी एंड गल्फ स्ट्रीम का एग्जाम्पल दिया। नाउ दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल, सर्टेन फीचर्स हाउ आर्टिक आइस एंड एंटार्क्टिक ग्लेशियर मेल्टिंग इज अफेक्टिंग द वेदर पैटर्न। अब हम देखते हैं कि हाउ विल इट इम्पैक्ट द ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम वी कैन टेक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट वी नो नेगेटिव ज़्यादा ही होंगे। सो लेट्स डिस्कस नेगेटिव फर्स्ट। अब नेगेटिव में क्या होगा, सिंपल ब्रेनस्टॉर्म, एज आई सेड ह्यूमन एक्टिविटीज़, पहले कम्युनिटीज़ ही ले लो, ठीक है, कम्युनिटीज़ हो गया, देन कोस्टल सिटीज़, ठीक है, देन what more you can write, food security, water security, then there is DM, loss of life and property, ठीक है। see how you can see that how I am generating points here। एक पता है नेगेटिव इम्पैक्ट है, सिंपल ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या क्या है उसके हिसाब से, जॉब जैसे फिशरीज हो गया, ऐसे दैट इज़ हाउ यू शुड जनरेट पॉइंट्स हियर। अब इसमें रैंडम पॉइंट्स लिखने से देर इज़ नो मीनिंग, यू हैव टू सब्सटैंशिएट योर पॉइंट्स विद एग्जाम्पल्स। कम्युनिटीज़ हैं, इन्यूइट्स का एग्जाम्पल ले लो, दे हैव डिफिकल्टी इन हंटिंग सील्स, जो बेसिक उनका फूड था। कोस्टल सिटीज़ एग्जाम्पल करंट अफेयर्स में था, इंडोनेशिया इज शिफ्टिंग इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू नुसुंत्रा, दैट यू कैन राइट। फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, कल्टिवेटेड लैंड कम हो जा रहा है। वाटर सिक्योरिटी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डिजास्टर बढ़ रहे हैं, देर इज़ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जॉब सिक्योरिटी, फिशरमैन्स, ये सब, ठीक है, दीज आर नेगेटिव इम्पैक्ट। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है इसके, सो लाइक यू कैन राइट फ्यू पॉजिटिव एग्जाम्पल एज दिस वॉज 15 मार्क का क्वेश्चन। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या लिखने का कि रिसोर्सेज, ठीक है, आर्टिक हैज़ ट्रैप्ड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, or we already knew that it was inaccessible. Now when Arctic ice is melting, these resources are getting accessible. Then second was roots, ठीक है। So नॉर्दर्न पोल में जो कंट्रीज थे, बिकॉज द एरिया वॉज फ्रोजन कंटिन्यूसली, द रूट्स वर नॉट ओपन, दे हैड टू पास थ्रू मैनी, तो जिसके कारण उनका इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ रहा था। नाउ व्हेन आर्टिक हैज़ बिन लाइक धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, दीज रूट्स आर गेटिंग ओपनड, ठीक है। सो दीज आर पॉजिटिव इम्पैक्ट विच यू कैन राइट। नाउ एज यू हैव रिटन दिस, नाउ लेट्स डिस्कस कि कंक्लूजन कैसा होता है। एज आई मैंशन कि IPCC हैज़ ऑलरेडी गिवन द रिपोर्ट, तो IPCC का ही कंक्लूजन लिख दो। लाइक इफ समवन हैज़ रेड अबाउट IPCC तो यू कैन राइट अबाउट दैट कंक्लूजन इटसेल्फ। तो उसमें क्या लिखोगे, IPCC हैज़ मैंशनड कि अर्जेंट ग्लोबल कंसेंस इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू कंट्रोल दिस, सस्टेनेबल यूज़ करो रिसोर्सेज का, ऑल दीज थिंग्स यू कैन राइट। नाउ क्वेश्चन रीड करके पता चल गया होगा, इट वॉज अ क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन। मैंशन अबाउट SDG कौन सा, SDG 13 था, देन SDG 14, SDG 13 क्या है, क्लाइमेट एक्शन, 14 लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ ऑन लैंड। यू कैन राइट अबाउट दिस की वी हैव टू अचीव इट, सो वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट। ऐसा कंक्लूजन ऑल्सो यू कैन राइट, ठीक है। नाउ एज वी हैव फिनिश द आंसर, ब्रेन स्टॉर्मिंग खत्म किया, प्रोवाइडेड अ सैम्पल आंसर, आई वोंट से दिस इज मॉडल आंसर, इट इज सैम्पल आंसर फॉर फ्रेशर्स ऑन हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन। तो मैंने बताया था देवर 2 टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, एक करंट अफेयर्स बेस्ड, तो आई हैव मेंशन कि IPCC ने बताया 150 ईयर्स में हाउ इट इज़ लोएस्ट, एंड दिस वाज बेसिक जनरल टाइप का करंट अफेयर्स की आर्टिक एंटार्क्टिक रेगुलेट अर्थ एटमॉस्फेयर। दीज आर द 2 टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन दैट यू कुड हैव रिटन। और भी टाइप के इंट्रोडक्शन इफ यू हैव स्टैटिक्स डेटा। अब बॉडी में आई मेंशन ऑल द कीवर्ड्स, बट द प्रॉपर वे की आंसर लिख सकते थे बहुत सारे तरीके, पैराग्राफ फॉर्म में यू कुड हैव रिटन, ये तो टैबुलर फॉर्म में, सो आई हैव मेंशनड हियर इन टैबुलर फॉर्म
कि ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तुम लोग का। तो इम्पैक्ट ऑन जेट स्ट्रीम, फिर उसका आर्टिका से इम्पैक्ट क्या होगा, एंटार्क्टिक से मैंने सडन स्ट्रेटोस्फेरिक एक्सप्लेन किया था, ग्लोबल सी लेवल राइज से क्या होगा, वीकनिंग ऑफ AMOC से क्या हो जाएगा, परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग, एम्पलीफिकेशन ऑफ टेम्परेचर, व्हाट वी डिस्कस बिफोर दैट ओनली हैव प्रोवाइडेड हियर। अब दूसरा, impact on human activities, communities, food security, livelihood, coastal cities. The important thing is that always substantiate your points with examples or case studies. So in newspaper when you are reading you have to jot down the points that you are getting there, ठीक है। दूसरा चीज़ है पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हमने मेंशन किया था। उसके बाद कंक्लूजन, एज आई टोल्ड IPCC हैज़ वार्नड अबाउट मेल्टिंग, रिवर्सिबल हो जाएगा अगर अर्जेंट एक्शन इफ यू डोंट टेक। नाउ let's discuss how Insights IAS mains text series were relevant in answering the question. So we here prepare questions based on current affairs and we analyze previous question thoroughly. After that only we try to prepare or frame a question. So we had last year framed 3 questions from this particular topic and we had provided elaborate synopsis on these 2. So it might have helped the students who have read those synopsis properly. Okay, so now I think you might like this initiative. If you want to make any changes, just give us comments. Thank you.